Friends, let's do question number 2. We are doing exercise 5.1, okay, chapter 5, introduction to Euclid's geometry. So question number 2 में क्या है ना guys, we have to define this following. See, EAV, you also know this. In previous class, you have already done class 7, class 8, already you know parallel lines, you know perpendicular lines, line segment, radius of a circle and square. And this, they are just simple the repetitions, okay? Again, the revisions. So let's do this also. Give a definition for each of the following terms. We have to simply give the definition for each of this. Okay. And after that, what is the second part of the question? Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? See, parallel line, perpendicular line, line segment, radius of a circle, square, ये सब define करने के लिए क्या और कोई terms use होता है? Like, see, perpendiculars, for perpendiculars, see how to draw perpendiculars lines. See, like this and like this, that means 90-degree, isn't it? That means we need angle 90-degree. Same radius of a circle, we need circle, we need radius, line, we need line. For a square, what I need a quadrilateral. Okay, square, I need a quadrilateral. For line segment, we need point. If I have 2 points, I can draw a line segment. So to define all this, we need some other terms also. Okay, so what I'll write here, first part I'll write here, yes, obviously we need yes, first part, okay, yes, we need to have, so we need to have an idea about the terms like क्या क्या पता होना जरूरी है point, isn't it? Point जानना जरूरी, because from point, if I have 2 points, I can draw a line segment, isn't it? So point जरूरी है, line भी जरूरी है, because when I draw a square, we need line, okay? So line also required. रे चाहिए, isn't it? Angle भी चाहिए, because when I draw a square, each angle is 90-degree, 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 okay? You'll see this also. So we need angle also, we need plane, isn't it? ये जो यहाँ पे जो करता है, सपोज ये एक लाइन ले लिया, तो कहाँ ड्रॉ कर रहा है? वी आर टेकिंग दिस लाइन ऑन दिस प्लेन, दिस पेज, this screen is my plane. Okay, so we need plane also, circle also required, and quadrilateral ठीक है, etc. Before defining the required terms, before defining the required terms, मतलब ये सब डिफाइन करने से पहले हमें क्या चाहिए होता है? वी नीड टू हैव आइडिया ऑफ पॉइंट का आइडिया होना जरूरी है ना? फिर लाइंस का, रे का, ठीक है? उसके बाद क्या था? आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? यस, दीज आर द टर्म्स व्हिच वी नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट टू डिफाइन दिस टर्म्स, ठीक है? ओके, सो लेट्स डू वन बाय वन. नाउ विल डिफाइन पैरेलल लाइंस, ठीक है? सो नंबर 1 पैरेलल लाइंस डिफाइन करते हैं. See, parallels already you know. I can think that you know parallel lines. What are parallel lines? See, any two lines. Okay, straight line होना चाहिए सबसे पहला. See these two lines, this one, okay, this one, this line, and this line. Okay, these two lines. Okay, so two lines P and Q. इसको P and Q दे देते हैं. ये lines का नाम क्या दे देंगे? P दे देते हैं.
और इसको ऐसा लेते हैं, ये लाइन का नाम P देते हैं, ये इसको Q दे देते हैं, ठीक है। टू लाइंस in a plane, ये plane में already I told you that what is the plane? Plane is the screen. Okay, this is our screen, so this is our plane. So two lines in a plane are said to be parallel. इसको parallel कब बोला जाता है? If they have no common point. देखो ये एक लाइन ले रहे हैं हम, ये एक लाइन, कोई कॉमन पॉइंट है क्या? दोनों कहीं मिल रहा है क्या? Are they intersecting at any point? No. Say the common point means what? These two lines. Suppose if I draw like this, so this is a common point. Okay, so this is my common point. This one, this one. But in this case, do we have such common point? No, obviously not. So they have no common point. First point क्या बोल रहा है? Common point नहीं होना चाहिए. So नहीं है ना, यहाँ पे common point है, ठीक है। ये parallel नहीं है actually. These are parallel, ठीक है। And we write them as P and Q. P and Q. P parallel to Q means P parallel to Q. P parallel to Q. ये हो गया parallel line का symbol है, ठीक है। Is that clear? So these two lines P and Q are parallel. What are parallel lines? Two straight lines which we draw on a plane and they do not have a common point. इसका जिसका कोई common point नहीं होता है। common point मतलब इस तरह, जैसे कि ये देखो intersecting point बोलते हैं, इस तरह नहीं होता, ठीक है। ये तो obviously parallel lines नहीं है, these are called intersecting lines, ठीक है। so these are parallel lines. समझ में आया parallel lines क्या है? very easy एकदम, ठीक है। so नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या था? perpendicular lines था। perpendicular lines क्या था? याद है ना, perpendicular मतलब क्या होता है? कोई भी दो लाइन ले लो, take any two lines. Say this one, suppose I take name, let's take the name of this line is Q and the name of this one is P, ठीक है। so these two lines and these two lines are making an angle 90 degree here. Okay, 90 degree. Is it clear? So these are two lines. Two lines P and Q lying in the same plane, एक ही plane में होना चाहिए, मतलब एक ही स्क्रीन में दिख रहा है, एक ही पेज या फिर एक ही स्क्रीन में, are said to be perpendicular if they form a right angle. See, ये दोनों लाइन क्या फॉर्म कर रहा है? राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर ऐसा नहीं। सपोज ये एक लाइन ले लिया, ये एक लाइन ले लिया, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, कितना हो जाएगा? मे बी 55-60 हो जाएगा, ठीक है, या 70, जो भी 70। तो दिस इज नॉट परपेंडिकुलर लाइंस, दिस इज परपेंडिकुलर लाइंस बिकॉज द एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस इज 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री ही होना चाहिए, ठीक है। इसी को परपेंडिकुलर लाइंस बोलता है। सो वी कैन राइट देम एज P perpendicular. So this is the symbol of perpendicular. Okay, P perpendicular Q. Let's do number 3. लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट क्या है ना, एक्चुअली सी लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। ये बहुत बड़ा एक लाइन ले लिया, सपोज एक लाइन ले लिया, ये एक लाइन बहुत बड़ा, उससे से हम थोड़ा पार्ट ले लिया, सपोज इतना ले लिया, इतना ले लिया, ठीक है। इसका नाम दे देता है ए बी। सो व्हाट, दिस इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन। एक्चुअली लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन, जिसका क्या होता है? एंड पॉइंट होता है, जिसका एंड पॉइंट होता है। क्या लाइन क्या रहता है? लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया लाइन। रे क्या होता है? जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। रे इज व्हाट? जिसका एक एंड पॉइंट होता है, उसको रे बोलता है। लाइन इज व्हाट? जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट इज व्हाट? जिसका दो एंड पॉइंट होता है, ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स, ठीक है। समझ में आया लाइन सेगमेंट क्या है? A line segment is a part of a line and having definite length. इसका definite length में भी हो सकता है 5 सेंटीमीटर, है ना, कुछ भी, मतलब definite एक length होगा। It has two end points, A and B, दो end points हैं। In the figure, line segment is shown having end points A and B. Yes, A और B end points हैं, and it is written as AB, ठीक है, और BA, मतलब इस तरह लिख सकते हैं, AB और BA, ठीक है। सो ये हो गया ए बी और बी। तो समझ में लाइन सेगमेंट के, लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट रहता है जिसमें कोई डेफिनेट लेंथ हो, जिसका दो एंड पॉइंट्स हो, उसी को लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। 2 ही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। सो नंबर 4 में क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। वी नो सर्कल, दिस इज आवर सर्कल, ओके, दिस इज आवर सर्कल। रेडियस क्या है? दिस लाइन व्हिच इज जॉइंड फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर होता है, ठीक है। दिस इज आवर सेंटर, let me show you. So this is our center, this is our center. From center, when it, the distance of the line from this center, okay, ये center जो है, ये center हो गया, ठीक है, ये center है। ये center से कोई भी डिस्टेंस ले लो, यहाँ से कहीं तक भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो,
यहाँ पे भी आ सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। ये सेंटर से यहाँ पे भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से डिस्टेंस जो है टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल, ये सर्कल हो गया, ये जो गोल दिख रहा है इसको सर्कल हो गया, ये सर्कल में कहीं भी, और सेंटर से कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल का जो डिस्टेंस रहता है उसी को रेडियस बोलता है। ये सेंटर हो गया, सेंटर से ये पॉइंट हो गया सर्कल का, इसको रेडियस बोलेगा। ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट हो गया ऑन द सर्कल, इसको रेडियस बोलेगा, बिकॉज रेडियस यार इक्वल ना, ये जो रेडियस होता है ये इक्वल रहता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। सी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से जो डिस्टेंस है टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसको रेडियस बोलता है। इन द फिगर पी इज द सेंटर एंड क्यू इज द पॉइंट ऑन द सर्कल एंड देन पी क्यू इज द रेडियस। ओके, सो जस्ट लेट मी राइट इट, पी इज द सेंटर, ठीक है, पी इज द सेंटर। सो ये पी ले लेते हैं, इस सेंटर का नाम पी ले लेते हैं, ठीक है, इसको पी ले लेते हैं और इसको क्यू ले लेते हैं। तो ये पी हो गया सेंटर, तो ये पी क्यू जो है ये हो गया रेडियस, ठीक है गाइस। सो रेडियस ऑल्सो फिनिश्ड। लेट्स डू नंबर 5, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर क्या है, सी ये भी क्वाड्रिलेटरल है ना, फोर साइडेड फिगर है। सी दिस इज आवर फोर साइडेड फिगर व्हिच इज ड्रॉन ऑन द प्लेन। इसमें थोड़ा क्या है, स्क्वायर में क्या रहेगा, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री है पहला। दूसरा, ये ऑल साइड्स इक्वल, ये जितना है, सपोज ये 5 ले, सपोज ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, कुछ भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, ये भी 5 होगा, ठीक है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच each of the angles is, there are four angles, so each of the four angles is 90 degree, that means all the angles are equal, ठीक है। ये 90 है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, all the angles are 90 and each are equal and all the sides also equal. So a quadrilateral in which all the four angles are right angles and all the four sides are equal is called a square. So again is given figure, I can write P Q R S is the square, ठीक है। So this is question number 2. So I hope you understood question number 2 also, all the part, okay, parallel lines, perpendicular lines. और एक चीज था, यस वी सी फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा था हमने कि यस वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द टर्म्स लाइक पॉइंट, लाइन, रे, एंगल, प्लेन, सर्कल, है ना, ये सब यूज हुआ है ना। देखो सपोज सपोज ये देख लेते हैं, लाइन सेगमेंट में पॉइंट का यूज हो रहा है, ठीक है। ये सर ये क्या बोलते हैं, ये रेडियस में क्या का यूज हो रहा है, सर्कल का यूज हो रहा है ना। फाइव में सी ये क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर में क्वाड्रिलेटरल का यूज हो रहा है, एंगल का यूज हो रहा है ना। सी एंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सब यूज करके इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? We are doing exercise 5.1 question 3 class 9, okay guys. So if you like the video, please share it and also subscribe my channel and also support us so that we can bring more and more videos. We are doing class 9 and 10 maths, okay. So we'll try to do all the chapters, guys. So let's do number 3. What is the question number 3? Consider two postulates given below. Given any two distinct points A and B, there exists third point C which is in between A and B. There exists at least 3 points that are not on the same line. So these are the two postulates of Euclid geometry. Euclid, ठीक है, Euclid ने postulate दिया था, उसी का दो postulate लिया है यहाँ पे। उसके बाद में क्वेश्चन क्या है, do these postulates contain any undefined terms? Are these postulate consistent? Do they follow from Euclid's postulate? Explain. तो इसको हमें explain करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं,